ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହୁଏ କହିବ ହେଲା। ଶୁଣ, ଆଜି ମାନେ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରୁ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ହିଁ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ମାନେ କ'ଣ କି କିଛି ପିଲା ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଅନନ୍ ନମ୍ବରରେ ବି ଜଏନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଡାଟା ନେଇକି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ, ବହୁତ ପିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ କୁପନ୍ କୋଡ଼ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରିକି ସେଥିରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ହେଲା। କାହିଁକିନା 500-600 ପିଲା କୁଆଡ଼େ ଆସିଲେ, ବୁଝଛ କି ନାହିଁ? ସେମିତି ହେଇଛି। ହେଲେ କ'ଣ ନା ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣସ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମେ କ'ଣ ନା ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଆଉ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ। ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଆଉ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ନା ସବୁଥିର ଦୁଇଟା ଅଂଶ ରହିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟା ଓଭରାଲ୍ ଗଦ୍ୟ ଉପରେ ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ରହୁଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ନୁହଁ ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଧାର କରିକି ହେଉଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ବିଏଡ଼୍ ଟାଇମ୍ରେ ଲେଖିଥିବା ଟିକେ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ। ଯେଉଁଟା ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ ସେଇଟା କ'ଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସବୁଥିରେ କପି ପେଷ୍ଟ ମାରୁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ପୂର୍ବବତ୍ ଲେଖିକି ଚାଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଡେଲି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତରେ ଏଇଟା ଫରକ। ଯାହା ସବୁ ତୁମକୁ କୁହାହେଇଛି, କେବଳ ରିକଲ୍ ପାଇଁ କହିଦେଲି। ତାପରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଯେଉଁ ତୁମକୁ ଫଟୋ କପି ଦେଇଥିଲି ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସେ ଭାବଗତ ଶାବ୍ଦିକ ସମ୍ଭାର ହେବା କଥା, ସେଠି ଭାଗବତ ହୋଇଯାଇଛି ହେଲା। ମାନେ ଭୁଲରେ ଲେଖିଦେଇଛି ଅବଶ୍ୟ, ମାନେ ସେଇଟା ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଭୁଲ। ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଏଯାଏଁ ଭାଗବତ ବୋଲି ହିଁ ପଢ଼ିକି ଚାଲୁଥିଲି। ତ ଦେଖିବ ସେଇଟା ଭାବଗତ ଶାବ୍ଦିକ ସମ୍ଭାର। ତ ଏବେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନେ କ'ଣରେ ନା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଆଧାର କରି ହେଇଥିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଆଧାର କରି ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଲା ସେଇଟା ହେବ ତା'ର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକରଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ଅଂଶ ରହିଲା, ସନ୍ଧି ରହିଲା, ସମାସ ରହିଲା ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା, ସେଇ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାରି ସେପାରେଟଲି ଅଲଗା 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 ଭାବରେ କେମିତି ଶିକ୍ଷଣ କରିବା, ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଯଦି ଜଣାପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ନା ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବାସ୍ତବିକତା ହେଉଛି ଏହା। ବାକି ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଦେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସିଟି ବୁକ୍ ଆଧାରରେ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା। କହିଲେ ବ୍ୟାକରଣମ୍ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ବିଷୟ ଅସ୍ତି। ସତ କଥା, ଆମର ବ୍ୟାକରଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପାଠ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଇଏକୁ କ'ଣ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ MCQକୁ ଇଏ କରିବୁନି। ହଁ, ଏଠି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଥାଏ ବିଷୟନିଷ୍ଠ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ୟାର ଭାଗ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ। ତ ବ୍ୟାକରଣଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ବିଷୟ। ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟାକରଣର ଉତ୍ପତ୍ତି ମାନେ ବ୍ୟାକରଣର ଆରମ୍ଭ କେବେ ମାନେ କେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକରଣର ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ନା ଭାଷାର ଲାକ୍ଷଣିକ ପ୍ରାୟୋଗିକ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିର କ'ଣ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବୈଜ୍ଞାନିକତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ 100% ନେକ୍ସଟ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ପଡ଼ୁଛି, ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖ ହେଲା। ତ କ'ଣ ନା ସେଇ ବ୍ୟାକରଣର ତସ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କେବଲମ୍ ଭାଷାୟାଃ ଶୃଙ୍ଖଳୀକରଣାର୍ଥମ୍ ନ ଶୃଙ୍ଖଳୀକରଣାର୍ଥମ୍ ନ। ଏଇ ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରୟୋଗ କେବଳ ଭାଷାର ଶୃଙ୍ଖଳୀକରଣ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଅପିତୁ ପଦାନାଂ ସ୍ୱରୂପମ୍ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ ବର୍ଣ୍ଣସାମ୍ୟମ୍ ଶବ୍ଦସାମ୍ୟମ୍ କ୍ରିୟାପଦାନାଂ ପ୍ରୟୋଗ ତଥା ରୂପ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇତ୍ୟାଦିନାଂ ଜ୍ଞାନମ୍ ପ୍ରଦଦାତି। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ରହିଲା କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରୟୋଗ କେବଳ ଭାଷାର ଶୃଙ୍ଖଳୀକରଣ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଅପିତୁ ପଦମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ପଦମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ, ବର୍ଣ୍ଣସାମ୍ୟ, ଶବ୍ଦ, କ୍ରିୟା ହେଲା। ତିନିଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖ। କ'ଣ
रूप पद वर्ण शब्द क्रिया है पांचटा जिनस रूप पद वर्ण शब्द क्रिया जो जाक विशेष करी आम सामान्य भाव में जापर से जाक कौन ना व्याकरण आधारित विषय जो रूप है रूप ही व्याकरण आधारित पद प्रयोग व्याकरण आधारित वर्ण साम्यम देख ये जाक कहीं इम्पोर्टाट कौच ये जाक तुम बही रे देखिब है ये जाक कौन जिते बड़े पचारदेव पद प्रयोग है पद प्रयोग से ज्ञानम कह ददाति ना व्याकरण शास्त्र ठीक अच्छे किंतु पद प्रयोगे वाक्य निर्माणम माने पदर प्रयोग करके वाक्य निर्माण बा व्यवहार रे आनयन एडा कौटी हुए ना गद्य साहित्य मन रखी था है दीटा जिनस ना पद प्रयोगर ज्ञान दब किए ना व्याकरण शास्त्र पद को प्रयोग करैकी भावर आदान प्रदान किए करिवो ना गद्य साहित्य बुझीगला तो दीटा कथा गोटे पदर प्रयोग शिखेब माने प्रथमे तुमको पद मानू किभली भाव में प्रयोग कर शिखौची किए व्याकरण शास्त्र माने पद पद प्रयोगर ज्ञान शिखौची नुह पद प्रयोगर ज्ञान प्रदान करुच्ची कि पद गुड़ी को प्रकार व्यवहार माने प्रयोग करवा उचित तापरे जेतेबेले ताको तुम व्यवहार रे प्रतिफलित करिवो वाक्य आकार रे प्रयोग करिवो सेटा हो कौन ना गद्य साहित्यर गोटे अंश बुझीगला दीटा जिनस ना किए कन्फ्यूज होछ जदि कह हाँ किसी असुविधा नहीं आ थे कौन जिते थर पचारे न बुझिला जाए कहवा है शुण कहले कि दीटा जिनस गोटे है पद रहा गोटे जगार पद पद माने तो जान कि नॉर्मल जो आमर राम दाम श्याम जहाँ भी रहा से पदर प्रयोग ज्ञान माने मनकर मु राम को बोली प्रयोग करुच्ची ताहले सेठी रामम हब राम टी जदि प्रयोग करुच्ची राम हब यही शिक्षाटा किए आमको दिए ना व्याकरण शास्त्र ना को गद्य लिखाएनि कि प्रथम पुरुष एक वचन रे राम हब प्रथमा विभक्ति एक वचन रे और द्वितीय विभक्ति रे रामम हब ये कौटे गद्य साहित्य लिखाएनि यही ज्ञानटा आमको किए प्रदान करे ना व्याकरण शास्त्र पद तापर जेतेबेले से पद को तमे वाक्य आकार रे व्यवहार रे प्रयोग करिवो मने कर राम को मु जानीगली राम को मु जानिली को शास्त्र रे ना व्याकरण शास्त्र रे तो मु जेतेबेले ताको प्रयोग करी कौन प्रयोग करी रे ना राम को टंकाटे दियो मु प्रयोग कली तो सेटा जेतेबेले प्रयोग कली मु आ जन कहूची कि मो भावटा को विनिमय करुच्ची से लेखन आकार हो कि वाचन आकार हो जितेबले से जिनसटा आसे सेटा कौन हुए ना कौन सेटा आसीज कौटी कि ना गद्य साहित्य बाको पलि जितेबले पदटा को वाक्य मु प्रयोग करदेली बुझीगला ना से कथा माने आमर को पद जाक ये देखा मिले किंतु पदटा को जितेबले आम वाक्य प्रयोग करूँ से सब गद्य रूप रे प्रयोग हुए हाँ गद्य रूप रे प्रयोग हुए बा गद्य साहित्य रे प्रयोग हुए बोली देइछे वाक्य डायरेक्ट है देखिबो तापर कहला कि संधि पठने स्वर विज्ञान से ज्ञानम ए जाक इम्पोर्टाट है संधि पठन रे स्वर विज्ञान ज्ञान कर्तृपदस्य प्रयोगे विशेष्य सर्वनाम पदानाम ज्ञानम है ये गोटे पार्ट क्रियापदस्य पाठने कृदंत प्रत्ययानाम ज्ञानम इम्पोर्टाट च छात्रेभ्य दातव्यम बुझीगला ना कौन कहला जितेबाला आम संधि पठन करूँ से कौन ना स्वर विज्ञान ज्ञान आवश्यक कर्तृपदर प्रयोग समय कौन ना विशेष्य और सर्वनाम पदगुड़िकर ज्ञान आवश्यक कार ना कर्तृपदर प्रयोग क्रियापदस्य पाठने क्रियापदर पठन जितेबाला क्रियापद को जितेबाला तुम पठन नुह पाठन जितेबाला पढ़ेब सेतेबाला कौन ना कृदंत क्रिया गुड़िकर ज्ञान क्या दबा दरकार गोटे छात्र को दबा दरकार
बारंबार कही आम सीडीपी को कौ आकार पढ़ुचे ना आज ए टीचर पढ़ुचे। तापर कहले कि वाक्यस्य उद्देश्य विधेय भागयोः चर्चायां क्रियापदम कर्तरी च आधारम कृत्वा प्रश्नैः अन्यपदानां परस्पर संबंधस्य ज्ञानम दातव्यम। एते इम्पोर्टाट नुह ये चार्टा जिनस इम्पोर्टाट तीन टा जिनस जोड़ा रहा संधि पठन स्वर विज्ञान कर्तृपद प्रयोग रे विशेष्य सर्वनाम पदगुड़िकर ज्ञान क्रियापद पाठन रे कृदंत पदानां ज्ञानम। एटू प्रश्न केमती आसीबो ना कृदंत पदानां ज्ञानम एतेषु कस्य पाठने आवश्यकम अस्ति ना संधि पाठने गद्य पाठने क्रियापद पाठने कर्तृपद पाठने तो ये जाक आमको जानिबा दरकार बुझीगला। हाँ आउ जन किए लास्ट क्लास रे पचारुला कि गद्य साहित्य पद्य साहित्यर प्रश्न केमती आसीबो एक्चुअली सेटा कोन मु लास्ट को आउ कहि पार नथली सेटा आज क्लास रे देखिबा हला। तापरे लास्ट जिनस किसी दरकार नहीं कि क्रियापद कर्तरी च आधारम कृत्वा प्रश्न अन्य पदानां परस्पर संबंध से ज्ञानम दातव्यम। ये किसी इम्पोर्टाट नहीं है चर्चा समय को कथा खाली। तापर आसिला कौन ना सामान्य उद्देश्य सामान्य उद्देश्य सामान्य उद्देश्य रे कहा ऊपर डायरेक्ट नजर रखिबो ना संपूर्ण व्याकरण शास्त्र उपरे है संपूर्ण व्याकरण शास्त्र उपरे नजर रखिबो जे किंतु व्याकरण रे कौन हुए ना जेतेबेले संपूर्ण व्याकरण शास्त्र उपरे सी गोटे वाक्य रे नजर रखिथिबो आउ गोटे वाक्य रे देखो बुझिया ट्राई करो गोटे जिनस सामान्य जिनस जेमिति कि गद्य साहित्यर गोटे फंडा रहिला कि आम कथा आकार रे लिखिबू तार भावटा को बुझेबू सेमिति पद्य साहित्य तार गोटे ही दिग रहिला कौन ना आम गीत आकार रे लिखिबू भावटा को बुझेबू किंतु जेतेबेले तमे व्याकरण उपर को आसुछ व्याकरण रे सबु जाकर फंडा समान नुह जेमिति कि कृदंतर फंडा अलगा तद्धितर माने तद्धित कृदंत ए जात प्रत्यय रे प्रयोग हुए किंतु सर्वनामर अलगा संधिर अलगा समासर अलगा सबु जाक अलगा अलगा तो यार सामान्य उद्देश्य को मन रखा गले किछि विशेष अंश को मध्य ध्यान देवा पड़ो है सुन कहला सामान्य उद्देश्य रे टिके गोटे मिनिट लाइन था हाँ शुण गोटे इम्पोर्टाट जिनस रही ना तुम बही देख व्याकरण शिक्षण मुझा माने कौन पाई मिस है बोली माने वे तो टाइपिंग होता किंतु कट हो जाए शुण गोटे लास्ट अंशटे देछि ना कौन उद्देश्य और विधेय अंशर आलोचना समय रे क्रिया और कर्ता को आधार करी प्रश्न करी अन्य पदमान विषय रे धारणा देवा आवश्यक खाली यहाँ वाक्यटा खाली मन रखी था ये क्वेश्चन आसा संभावना बहुत कम खाली वाक्यटा मन शुण एटी कहला कौन ना आम पढ़ा ए कौन ना सामान्य उद्देश्य रे कौन है प्रथम देला शुद्ध लेखन क्षमताया विकासाय छात्रेभ्य कृदंत तद्धित प्रत्ययानां सम्यक ज्ञानम है एटी कहब कि भाईना कृदंत तद्धितता आसीगला सेपारेट एटी कहीं सामान्य उद्देश्य रे रहिला ना
सी एठी कौन करुच्ची सी कृदंत तद्धित प्रत्ययानाम ज्ञानम एटा गोटे सेपारेट पार्ट कर देछि किंतु यार मुख्य उद्देश्य कौन ना शुद्ध लेखन विकास कौन शुद्ध लेखन क्षमता रो विकास ये जो शुद्ध लेखन क्षमतार विकास देखिला बेले आमे कौन ना संपूर्ण व्याकरण तत्व को आमे आधार करवा आवश्यक किंतु एठी जेहेतु प्रश्न ए प्रकार भी आसीपर ना कौन शुद्ध लेखन क्षमतार विकास पाई छात्र मानू क्यों ज्ञान देवा आवश्यक एमती भी प्रश्न दे दौरान बुझल कि नहीं तो सेटा मन रखी तो अवश्य यही गोटे जिनस जाणीदे कौन तार लेखन क्षमता विकास हो कि हम ना सब जिनस जाना कथा किंतु जेहेतु बही देछि प्रत्यक्ष प्रमाणम टाइप्र देखिए चलो है बुझीगला शुद्ध लेखन क्षमतार विकास पाई छात्रेभ्य कृदंत तद्धित प्रत्ययानाम सम्यक ज्ञानम दातुं तापरे द्वितीय रहा ना शुद्ध पठनाय गुरुलघु संयुक्ताक्षराणाम संयुक्त वाक्यानाम शुद्ध उच्चारण से कौशलम प्रदातुं शुण ये जो गुरुलघुर विचार आउ थोड़े कौटी पढ़ते पद्य सहित सामान्य पद्य सहित भी पढ़िଥିଲେ ज्ञानात्मक भी पढ़िଥିଲେ ज्ञानात्मक पक्षर पढ़ते और पद्य सहित भी पढ़ते ठीक अच्छे शुण किंतु एटी देख एटी कौन कहला ना शुद्ध पाठना पठनाय शुद्ध पढ़िबा पद्य साहित्य संयुक्ताक्षर पढ़ि नथिले खाली गुरु लघु पढ़िଥିଲେ एटा एक्स्ट्रा संयुक्ताक्षर देछि हां सेटा कहू माने कौन कही माने आमे जो पढ़ी सेठी कौन के बोलथिला खाली गुरु लघु माने से कविता मो सुन आज जो कविताटा तुम खाली शुणी दियो मु तार फोटोकॉपीटा व्हाट्सएप ग्रुप रे पठे देबी है कहबी लास्ट ना कौन शुद्ध पठनाय गुरु लघु संयुक्ताक्षरा संयुक्त वाक्यानाम शुद्ध उच्चारण से कौशलम प्रदातुं शुद्ध उच्चारण से कौशल प्रदान माने यार मुख्य उद्देश्य कौन रहा ना शुद्ध उच्चारण कौशलटा प्रदान करिवो केमिति प्रदान करिवो ना गुरु लघु संयुक्त वाक्यानाम सॉरी कहार शुद्ध उच्चारण प्रयोग करिवो ना गुरु लघु आ संयुक्त वाक्य मानकर शुद्ध उच्चारणर क्षमता प्रदान करिवो ताबरे ना ये क्षमता कौन पाई आवश्यक ना शुद्ध पठन पाई मन कर दे दो व्याकरण शिक्षण से सामान्य उद्देश्य शुद्ध पठनाय है शुद्ध पठनाय सॉरी शुद्ध पठनाय गुरु लघु संयुक्त अक्षराणाम संयुक्त वाक्यानाम हाँ किसी नहीं सामान्य कथा एमती प्रश्न आसवनी खाली सामान्य कथा कि गुरु लघु संयुक्त अक्षर गुड़िकर पठन करिकी तार शुद्ध उच्चारण क्षमता प्रति तार कौशल विकास करवा तापरे 3 नंबर रे कौन देला ना वाक्यर योग्यता आकांक्षा आसक्ति इत्यादीनाम आधारेण पूर्वपर संबंधस्य परस्पर संबंधस्य च ज्ञानम धातु सामान्य कथा कि योग्यता आकांक्षा आसक्ति जदि गोटे वाक्यर न थाए ताहले से वाक्यटा को आमे संपूर्ण भाव में बुझीपारू ना तो ये जो योग्यता आकांक्षा आसक्ति ये जगह जो रहा ये 3टा जिनस कौथर ना व्याकरण शिक्षण यहाँ सामान्य भाव में जना पड़ किंतु एटी कौन ना वाक्यानाम मन करदेला वाक्यानाम पूर्वपर संबंधस्य ज्ञानार्थम वयम वाक्यस्य कौन केशाम पद्धति नाम उपरि अथवा केशाम तत्वानाम उपरि आधारम कुर्मः ना कौन 3टा तत्व गोटे योग्यता गोटे आकांक्षा गोटे आसक्ति ये 3टा तत्व सामान्य भाव में मन रखि वाक्यर योग्यता वाक्यर आकांक्षा वाक्यर आसक्ति थिले जाइए गोटे वाक्यटे कौन हम ना तार संपूर्ण अर्थ को परिप्रकाश कर तापर देला कि धातुषु प्रत्यय उपसर्ग योगेन नूतन पद निर्माणम तस्य अर्थम वाक्य प्रयोगम च ज्ञापयितुम
गोटे धातुरे कौन हुए प्रत्ययर प्रयोग करिकी प्रत्यय उपसर्गर प्रयोग करिकी गोटे धातुरे प्रत्यय उपसर्गर प्रयोग करिकी नूतन पद निर्माण आउ तार अर्थ और वाक्य निर्माण उपरे देख जितेबाला नूतन पद अर्थ वाक्य ए जाक आसला ए जाक कौन ओवरऑली गोटे व्याकरण शिक्षण उपरे प्रायोरिटी दिया ए सब जगह पढ़ेला पर लास्ट को तुम मानी गोटे क्वेश्चन हम किए केते अटेंटिवली देखुल देखिए ना कौन समासांत पदानाम अर्थस्य उच्चारणस्य यथार्थ प्रयोगस्य च ज्ञानम प्रदातुम समासांत पद गुड़िकर कौन ना अर्थ उच्चारण और यथार्थ प्रयोग रो ज्ञान तो एटी समासांत पद गोटे सेपारेट हेले मध्य यार मुख्य विषय कौन ना तार अर्थ तार उच्चारण तार यथार्थ प्रयोग ये सबू जाक कौन ओवरऑली व्याकरण उपर डिपेंड होतबारो व्याकरण शिक्षण सामान्य उद्देश्य रे ग्रहण करा तापरे कहला धातुम धातुम आदृत्य प्रत्ययोगेन निर्मितानां पदानां पदार्थगत प्रयोग महत्वम ज्ञापयितुम ये जो धातु को आधार करके जो आम पद गुड़ाक निर्माण कले से पद गुड़ाकर जो प्रयोग हम तार महत्व तार यथार्थ ज्ञान को उपस्थापन करने आम कौन करूँ ना व्याकरण उपरे निर्भर करूँ। नेक्स्ट ना अंतिम जिनस कौन रहा ना व्याकरण शास्त्रानुकूल भाषाया प्रामाणिक रूपम निश्चित्य वर्णशुद्धि ही तस्याः कारणम च ज्ञापयितुम व्याकरण शास्त्रानुकूल भाषार प्रामाणिक रूप प्रामाणिक रूप को उपस्थापन करके तार जो वर्णशुद्धि आ तार वर्णशुद्धि बा वर्णर अशुद्धि जहाँ रुए तार आउ तार कारण गुड़िकर ज्ञान पाई आम कौन करूँ क्या डिपेंड करो ना व्याकरण शिक्षण सामान्य उद्देश्य एबे मत गोटे कथा कह सबू देख लो ये जो व्याकरण शिक्षण सामान्य उद्देश्य रही ये सामान्य उद्देश्यटा विशेषकर कौ जिनस को माने कौ कौशल उपर प्रायोरिटी दौर रे मनोगत्यात्मक बा क्रियात्मक कौशल कौशलात्मक अन्य माने साइलेंट रोनी कौन मनोज कौ कौशल कौ लक्ष्य उपर भाई कौशलात्मक हाँ आ अन्य माने कौन भावुच केवल कौशलात्मक ज्ञानात्मक भी तो हम हाँ ठीक अच्छे किसी असुविधा ना ये माने कौन आम तो टोटालटा तो मूलर पढ़ी पारे देखीदिव खाली है यार माने आप्लिकेसन रे एबे सागे सागे अपलोड करदे है अपलोड करदे देखीद पुणी थे शुण एटी विशेष करी क्या प्रायोरिटी दिगला ना कौशलात्मक लक्ष्य उपर ज्ञानात्मक ज्ञानात्मक लक्ष्य जी कौच सेटा भी माने क्वचित मात्रा रे किंतु विशेष करी देख उच्चारण तार लेखन प्रयोग विषय सब ये प्रयोग देछि हाँ सब जगह प्रयोग देछि केवल गोटे जगह सम्यक ज्ञान प्रदातुम देछि हाँ सम्यक ज्ञान प्रदातुम सेटा भी माने सम्यक ज्ञान ज्ञापयितुम केते नंबरटा कहलो अरे प्रभु देख टिके सी सम्यक ज्ञान देला सत किंतु सम्यक ज्ञान कहार कृदंत तत्वित प्रत्यय गुड़िकर सम्यक ज्ञान देला एटा एटा माने व्याकरण शिक्षण सामान्य उद्देश्यटा एटा को दीटा भाग कर दियो टिके गोटे मिनिट भाई फास्ट भागटा देखिले कौशलात्मक हो जो सेकंड देखिले ज्ञानात्मक ना सुनो संपूर्णटा होची कौशलात्मक रे काहे के जीव देखो ना जेतेबेले प्रथम भागटा को सी देखुची ए द्वितीय भागर अलगा किछि महत्व नाही द्वितीय भागर माने ए जदि प्रथम भागटा नाही ए जो कृदंत तद्धित प्रत्यय नाम सम्यक ज्ञानम एटा गोटे लाइक ए विशिष्ट उद्देश्य
ये सामान्य उद्देश्य रे आसीबनी ये सामान्य उद्देश्य रे केतेबेले आसीबो ना जेतेबेले सी प्रथम वाक्य उपरे डिपेंड करिवो मु कोन कहूची बुझी पारछो तो काहे कि प्रथम वाक्य उपरे डिपेंड करिवो ना शुद्ध लेखन क्षमता जो अछि शुद्ध लेखन क्षमताटा संपूर्ण व्याकरण रो गोटे अंश न कि गोटे सेपरेट पार्ट बुझियला अरे बुझियला कि नहीं हाँ आगे आगे यही वाक्यटा डायरेक्टली या ऊपर डिपेंड अछि हाँ कह भाईना जो ग नंबर टा सेटा ज्ञानात्मक रे जाउछि कि इत्यादि से ज्ञानम प्रदातुम हाँ वन टाइप ऑफ हाँ सेटा कहल ठीक अच्छे यहाँ वन टाइप ऑफ ज्ञानात्मक लक्ष्य जीव किंतु तथापि भी जेहेतु सेटा माने वाक्यर प्रयोग उपर विषयक कथा ये जो कौन आकांक्षा आसक्ति बा योग्यता जो रहा सेटा गोटे वाक्यर प्रयोग विषयक जेहेतु तत्व तेणुक वाक्य अनुसार देखिले ज्ञानात्मक पक्षरे जीव किंतु ओवरऑल जदि ताको डीपली चिंता करिवो सर्जनात्मक शक्ति जो चिंता करिवो सेटा भी पळेबो कौन मनोगत्यात्मक पक्षरे हो ठीक अच्छे सेटा आमर इम्पोर्टाट नुह केवल जानिया माने एमती आम रिकल करी गले मन रहिबो एठी गोटे कथा कहल गोटे अंश थिला कि व्याकरण प्रत्यय गुड़िकर ज्ञान द्वारा आमर व्यवहार प्रयोग एटा को उद्देश्य रे थिला ए सॉरी हाँ को उद्देश्य रे थिला सामान्य उद्देश्य अरे हाँ प्रभु सामान्य उद्देश्य जे माने कहार सामान्य उद्देश्य हाँ सेटा मु पचार सामान्य उद्देश्य हाँ हाँ ठीक अच्छे वेरी गुड शुण से जगह टिके देख गोटे कथा ना आमे टोटाल सिलेबस को केते थर कंप्लीट करवा 3 थर हला फुल टाइम अच्छी फास्ट थरटा कौन स्लो हला पूरा स्लो रे तुम देखिथबो को तरतर नाही हाँ जदि नोटिफिकेशन आसीगला तार भी उपाय मो पाखे अच्छी किसी डरबार किसी ना सेकेंडटा है टिके स्पीड हम है थार्डटा है थार्ड पार्टा कौन शुण तुम मानक भल लगे जदि से पार्टा करवा ना जदि ना थार्ड पार्ट रे कौन हम आमर केतेटा पार्ट रही माने सिलेबस अकॉर्डिंग जोटा मु बनई से सिलेबस अकॉर्डिंग आमर 7टा पार्ट रोचे हाँ कि नहीं माने मु बनई माने ओडिशा गवर्नमेंट रो सिलेबस अकॉर्डिंग आमे गोटे प्रॉपर प्लानिंग सिलेबस बनई जो माने भी वीडियो देखिन यार फास्ट वीडियो देखिदब एप्लिकेशन रे अपलोड अच्छी शुण से जो अकॉर्डिंग आमे कौन करवा ना जो तृतीय पार्टा रहिला से तृतीय पार्ट रे आमे कौन करवा ना जो 7टा पार्ट रो प्रतिदिन सप्ताह को आमर 7 दिन सेते बेले संडे को भी आमे नहीं जिबा हला प्रतिदिन कौन करवा गोटे गोटे पार्ट को पूरा फास्ट टू लास्ट जाए पढ़ा मनकर आज 1 नंबर पार्ट पूरा फास्ट टू लास्ट जाए कहीं सेते बेले आमको आउ माने एमती टिकी निकी तो पढ़ा पड़ोनी पड़ो कि सेते बेले आमको कौन माने केवल ओवरऑल केवल लुक करी जीवार अच्छी खाली गोटे गोटे वाक्य पढ़ी 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 जीवार अच्छी तो प्रतिदिन गोटे गोटे पढ़ले तुमर 7टा ये को केते दिन रे कंप्लीट हम 7टा पार्ट रे 7 दिन रे कंप्लीट हो 1 वीक रे तो जितेटा सप्ताह आसला तुम से थर रिविजन हो ना कौन कौच ना एत स्पीड पढ़ी हम हाँ हो पार जे किंतु सेटा केते बेले हम सेटा भी तुम मानक भी किसी स्ट्रीट न कले हम ना तुमर एबे लास्ट को गोटे मॉक टेस्ट करेगी माने सब पढ़ेला परे जो मॉक टेस्टा के बेसी नहीं टोटाल 25 मार्क हम से 25 मार्क रे जी 23 24 25 भर मार्क ना 23 24 25 भी नहीं 25 रु 25 जो मान रखिल तांको सतरे सीरियसली कहूँ गोटे सेपरेट ग्रुप रे तांको माने 24/7 गाइड करू एतिक भी कहूँ तो समस्ते मार्क रे सेमती नुह समस्ते पढ़ा असुविधा नहीं किंतु समस्ते गोटे मार्क रखा ट्राई कर है रही कि ना है तो ना निज ऊपर भरोसा पाऊनी अरे टिके शुण भरोसाटा केत आसो जो जाए आम पढ़ीचे से जाए नोटा मु आज कि काली तुमको ग्रुप रे दे दूची पूरा फास्ट लास्ट जाए देख तुम यही नोट को कवर कलापर तुम सेपरेटली अलग अलग बही को पढ़ा किसी आवश्यक ना जोटी दरकार पड़ो
ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେବି ହେଲା। ଯେଉଁଠି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ସେଠି ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଟିକେ ବହିରୁ ଦେଖ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣର ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ କେବଳ ପଢ଼ିବା ନା କାହାର କାମ ଅଛି ନାଇଁ ତ? ନାଇଁ ଶୁଣ ନା ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣର ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ କହିଲା ନା ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା। ସେ କହିଲା ଶିକ୍ଷକେଣ କକ୍ଷାୟାମ୍ यः विशिष्टः विषयः पाठ्यते तस्यैव विषयस्य विशेष उद्देश्यानि स्पष्टतया निर्धारितानि भवेयुः। माने जेतेबेले गोटे शिक्षकटे माने कक्षा शिक्षण को जाए सी को उद्देश्य उपरे प्रायोरिटी देकी जीवा दरकार ना तार विशिष्ट उद्देश्य उपरे। कहीं सामान्य उद्देश्यटा सब बेले ता माइंड रे रहिबो बिकज से सामान्य उद्देश्यटा को सब बेले पारित करे, किंतु जेतेबेले विशिष्ट उद्देश्य को विषय आधारित पारित करिया पड़े कक्षा शिक्षण रे मुख्य भूमिका ग्रहण करे कि ना तार विशिष्ट उद्देश्य ना शिक्षण क्रिया वस्तुनिष्ठा क्रमबद्धता हम है। वस्तुनिष्ठता क्रमबद्धता छात्र केन्द्रिता च भवेयु इम्पोर्टाट मोस्ट इम्पोर्टाट है। ये जिनस जाक ना तो मुझे सब पढ़े 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 जी कि किए कहबेनि तो जितेबाला कहूँ टे माइंड रखिद है इम्पोर्टाट। शिक्षण क्रियाटा केमिति हवा दरकार ना वस्तुनिष्ठ क्रमबद्धता छात्र केन्द्रिकता। छात्र केन्द्रिकता कौन पूर्व क्लास रे डिसाइड करते क्रमबद्धता कौन ना क्रमबद्धता केतेबेले क्रमबद्धता कौन रे जितेबेले आमे क्लास को एंट्री करछु तार किछि सोपान अच्छी से कहुए गोटे ट्रेन टीचर आ गोटे अनट्रेन टीचर भितर फरक रुहे। जो मैंने बीएड करके आसचंती जो मैंने बीएड करना भितर फरक रुहे। बीएड करवा शिक्षकटे कौन हुए क्रमबद्धता को अप्लाई करे माने कौन फास्ट प्रस्तावना तापर कौन उद्देश्य कथन ये टाइप रो जो रुहे प्रोसेस से प्रोसेस अनुसार चल। हाँ आम मु कहूनी कि से जो 14टा कि 16टा सोपान अच्छी सब जाक पालित करे किंतु एमिति नुह कि व्याख्यान सरला परे से प्रस्तावना करियो एमती करंदी को शिक्षक हाँ सी जेते भी जदि ट्रेन नहीं से फास्ट प्रस्तावना पर प्रस्तावना करनी सत किंतु एमिति नुह कि व्याख्यान पर पुणी प्रस्तावना करियो किए करछ कि सेमती टीचिंग प्रैक्टिस रे हाँ तो कौन ना शिक्षण क्रिया आउ गोटे रहा वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता माने कौन गोटे निर्दिष्ट जो विषय को आधार करके सी पढ़ाउथबो जेहेतु छोट पिला पढ़ेब माने जो जहाँ को केन्द्र करके पढ़ाउथबो तार केन्द्रर सार तत्व को माने ताकू ही मुख्य भाव में प्रायोरिटी दब। सी गोटे विषय मनकर पढ़ाऊँ जय राजगुरु ताले सी तापर पलैला स्वाधीनता संग्रामी पाखु स्वाधीनता संग्रामी पलैला महात्मा गांधी पाखु महात्मा गांधी पलैला अगस्ट 15 पाखु अगस्ट 15 पलैला कुआडे ना कौन आम केमी पालन करूँ तापर आसो जयराजुरु पाखु एमती नुह माने विषय को वस्तुनिष्ठता विषय गोटे माने तार गोटे निर्दिष्टता रहिबा दरकार। जेमती आम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौचे ताने कौन संक्षिप्त उत्तर तार प्रश्नर उत्तर डायरेक्ट सेमती जो विषयटा को उपस्थापन कर से विषय येटा डायरेक्ट रहिबो तो सेटा है 3टा जिनस। तो बेसिकली 3टा जिनस मन रखिबो ना कौन शिक्षण क्रिया वस्तुनिष्ठा क्रमबद्धता छात्र केन्द्रिकता च भवेयु इम्पोर्टाट बारंबार कहूँ। तापरे नेक्स्ट देख कि विशिष्ट उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य रे कौन ना केतरा विशिष्ट उद्देश्य अच्छी मुख्य भाव में 4टी विशिष्ट उद्देश्य को उपस्थापन करा जायछि ना कौन छात्राणाम ज्ञानमापनाय उदाहरणानि आरोह पद्धत्या प्रस्तुतानि भवेयुः तथा च अर्थबोधपरकानि भवेयुः। एटा केवल देछि एटा को एटिकी भी ज्ञानमापन जेतेबेले देला ज्ञानमापन पाई कौन करे ना उदाहरण गुड़ी को कौ हिसाब से दबा दरकार ना आरोह पद्धति दबा दरकार ताने सहज पद्धति माने वन टाइप एवं टे माइंड रखी तो आरोहटा अवरोह अपेक्षा टिके सहज है।
तो आरह पद्धति उदाहरणटा प्रस्तुत करिकी कौन कर अर्थबोधपर कहानी प्रभाव जो उदाहरण जाक सी प्रस्तुत कर सी कौन अर्थबोधपरक एटा माने डायरेक्ट पचारे एटा विशिष्ट उद्देश्य आसे कि नहीं किंतु यार मुख्य अंश कौन ना छात्राणां ज्ञानमापनाय उदाहरणानि कस्यां पद्धत्यां भवेयुः है बुझेगा एटा इम्पोर्टाट माने एटा विशिष्ट उद्देश्य आसब कि नहीं एत पचारे है तापरे शिक्षकस्य छात्राणां च उच्चारण शैली ध्वनि विज्ञान आधारिता भवेत् शिक्षक और छात्र मानकर उच्चारण शैली क्या आधारित हवा उचित ना ध्वनि विज्ञान हवा आधारित हवा उचित ए जाक भी तुम जदि वाक्य को लक्ष्य कर लगे सामान्य उद्देश्य भाया किंतु टिके मन रखियो एटा टिके बही देखिकी घोषिकी जो जो नोटा पठे रिटिन नोटा कांथरे मारिकी टिके मन रखियो तापरे कहले कौन ना पठित विषय सरल चेत सॉरी ये जो आरह पद्धतिटा माने कौन विशेष रूप से उदाहरण गुड़ी को प्रयोग हुए किंतु विषय जितेबले सरल थाए सेतेबले को पद्धतिर प्रयोग हम ना अवरोह पद्धति है पठित विषय सरल चेत अवरोह पद्धत्या शिक्षण कृत्वा विषय बोध सुलभतया कर्तुं शक्यते जेतेबेले विषय सरल थिबो कार प्रयोग करिवो ना अवरोहर जेतेबेले माने विषय कौन सरल रु टिके ऊपर को थिबो सामान्य भाव में आरह पद्धतिर प्रयोग करिवो हैला सरल लास्ट कौन आछि सरल रे कौन हलंत युक्त अ तो से जो हलंत युक्त अरु मन रखियो अरु आरंभ हो गला अवरोह बोली हैला सरल इक्वल टू अवरोह बुझी हम ना कौन डाउट मन रहिबो तो विषय जदि सरल थिबो लास्ट को देख सरल अ आछि अवरोह हैला तापरे अ गला परे ए आउ तो तापरे परे आसीबे आरे आरोह उरे उदाहरण दवा पय कोडे माने आरोह पद्धति रे विशेष करी ज्ञान मापन पय उदाहरण द्वारा प्रयोग करा जाय तापरे ना प्रत्येकस्य पदस्य उत्पत्ति प्रक्रिया प्रत्यय प्रयोगस्य अर्थः तथा वाक्ये प्रयोग कौशलं प्रति शिक्षक छात्राश्च विशेष ध्यान दद्युः माने कौन कहला ना प्रत्येक पदर उत्पत्ति प्रक्रिया प्रत्यय प्रयोगस्य अर्थः तथा वाक्य प्रयोग कौशल देख फास्ट पद उत्पत्ति हो गला तापर प्रत्यय लागिला पर कौन हम वाक्य प्रयोग करिवो एई तीनटा जिनस बची को माने ध्यान देबे रे ना बोथ टीचर एंड स्टूडेंट बुझिगला तो एई जिनस जाक प्रति जेहेतु विशेष ध्यान देबे विशेष ध्यानम दद्युः तेणु करी कोठ रहला ना विशेष उद्देश्य रे आसला एई चारटा जिनस चारिटा जेहेतु अच्छी मन रही जीव आउ सेई वाक्य जाक टिके टिके सुन आउ गोटे उपाय कहूँ जो वाक्य तुमको मन रहुनी से वाक्यटा को तुम सांग को गोटे टाइपिंग कर पठे दियो माने तुम तो किए जड़े क्लोज फ्रेंड थी टाइपिंग करके पठे दियो जदि तापर मन न रहा मत कह सेटा भी गोटे इजी ट्रिक बिकज व्हाट्सएप में माने माइंड रे टिके रुहे सत कथा ही नहीं रे तो थरे खाली ओडिया रे टाइपिंग करियो बही रे दिखाई एटा ज्ञानात्मक उद्देश्य या तो मेसेजटे कर दियो मन रही है तापर सुन गोटे माने से जो गद्य कौन आम जो ज्ञानात्मक भावात्मक कौशलात्मक जो पढ़ुले सेटर केवल ज्ञानात्मक पक्षटा को आम देखी आउ दुईटा आम देखी नथिले तो
तो भावात्मक पक्ष शुण आउ गोटे कथा तुमको माने जो इंग्लिश जाक नहीं कि सब वार्डर ए मॉक टेस्ट रे माने जेतिकी पढ़ीचे ता भितर आसब तो ସେଇଟା को गोटे नोट करिकी प्रोवाइड करदेवी नचेत टिके खाली ओभरलुक करथिव माने सामान्य इंग्लिशटा माने जो वार्ड जाकर इंग्लिश जमती भावात्मक लक्ष्य ये जाक जो आसुची से जाक टिके नजर रखिथिव ए मॉक टेस्ट रे जो नेक्स्ट हम तापरे माने जेतेबेले इंग्लिश पार्टटा हम पढ़िबा सेतेबेले तार गोटे सेपरेट मॉक टेस्ट करिबा ना कौन भावात्मक उद्देश्य रे प्रथम रहिला कि छात्र मानक मनरे संस्कृत भाषार सर्वांगीण विकास साधन निमंते प्रेरणा प्रदान करवा जेहेतु तांको मन को प्रेरणा करुचे ना को विकास पाई ना संस्कृत भाषार सर्वांगीण विकास संस्कृत भाषार सर्वांगीण विकास पाई जेहेतु तांको मनरे आमे गोटे प्रेरणा सृष्टि करचे तो सेटा कौन हो ना तांको भावात्मक लक्ष्यर गोटे अंश हो वाक्य जाक बुझ मु तुमको जो कविताटा देवी से कविताटा को थरे दिथर तीन थर पांच थर 10 थर पढ़दब मन रही आ कि असुविधा नहीं तापर कौन ना संस्कृत भाषार निर्मलता और साहित्य प्रति अनुराग उत्साह सृष्टि करवा मनरे भावना सृष्टि करवा माने मनरे प्रेरणा सृष्टि करवा अनुराग अनुराग माने पार्ट ऑफ कौन इफेक्टिव अनुराग सृष्टि करवा तो कहार अनुराग सृष्टि करवा ना संस्कृत भाषार निर्मलता और साहित्य प्रति संस्कृत भाषार निर्मलता और साहित्य प्रति आम कौन करवा ना अनुराग उत्साह सृष्टि करवा तापरे कहले कौन ना पाठ्य विषय बिना चारित्रिक उन्नयन उद्देश्य रे विभिन्न नीतिबाणी संबलित पुस्तक गोटे पाठ करने को उत्साह सृष्टि करवा कौन करवा सांग मनरे गोटे प्रकार उत्साह सृष्टि करवा ए जगह कहीं ओडिया रे देछि बारंबार कही कि या आम संस्कृत रे जेते माने मॉडिफिकेशन कले भी एटा को हमको डायरेक्टली मन रखा पड़ो बुझल कि नहीं से बहिर जहाँ दिखाई से आम तापर कौन देला ना घ ना कहला कि महाभारत इत्यादि आख्यानर पठन माध्यम देश प्रेम तथा देशभक्ति उद्वेक कराइबा महाभारत इत्यादि आख्यानर पठन द्वारा आम कौन करवा माने देश प्रेम भावना और देशभक्ति भावनार उद्रेक कराइबा ये भावना सब जेहेतु देश प्रेम देशभक्ति ये जाक कौन ए पार्ट ऑफ भावना माने आमर गोटे भावना माने देश प्रेमटा कि नुह आम मन जागरण होता गोटे भावना होची आमर देश प्रेम तो से देशभक्ति भी से भाया तो जेहेतु भावना उपरे प्रायोरिटी दिगला तेणुक भावात्मक पक्ष आसब किंतु इम्पोर्टाट कौन ना प्रश्न जदि एमिति दब कि महाभारत इत्यादि आख्यानर पठन माध्यम केउ भावनार जागरण होता है बा केउ भावनार उद्रेक होता है तो सेठी आमको जानवा पड़ो ना यहाँ हूँ देश प्रेम भावना किंबा देशभक्ति भावना ठीक अच्छे अरे बुझी हम कि नहीं तापर कहला कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत और रामायण महाकाव्यर आदर्श मार्ग को रामायण महाकाव्यर आदर्श मार्ग को सर्वदा मनरे उज्जीवित करी निजको आदर्श करी गढ़ी तोड़िबा ठीक कथा आमे रामंक भଳି हबा रावण भଳି हबा नहीं ये वाक्यटा को उद्देश्य को लक्ष्य कहले मन रखी था देख आमे राम भलिया हबा रावण भलिया हबानी ए जाक आमे कोठु से ना गोटे मनरे निजर धारणा गोटे सृष्टि हबा दरकार बुझिल कि नहीं सर्वदा मन मध्य उज्जीवित करवा से कहले कि एटा मध्य कोट्रे आसला ना भावात्मक पक्ष तापर कहले काव्य नाटक आदि पठन कराई रसानुभूतिर परिप्रकाश सहित हार्दिक भाववेगर उद्रेक करे काव्य नाटक इत्यादिर पठन करवा करेकी कौन करिया रसानुभूति जागरण करवा रसानुभूतिर जागरण जेहेतु आसिला मोस्ट इम्पोर्टाट ए जिनस मन रखी था रसानुभूतिर परिप्रकाश कौटिरे
भावात्मक लक्ष्य है मुख्य माने मोस्ट इम्पोर्टेंट रसानुभूतिर परिप्रकाश मोस्ट इम्पोर्टेंट तापर रहा ना कौन सर्जनात्मक शक्तिर अभिवृद्धि निमंते विद्यार्थी मानक मानसिक चिंताधारा रे अभिव्यक्ति सह शास्त्रानुराग करवा एटी कौन शास्त्रानुरागी गोटे जिनस सर्जनात्मक शक्तिर अभिवृद्धि ए दुईटा जिनस को प्रायोरिटी दब ना कौन सर्जनात्मक शक्तिर अभिवृद्धि करवा कौन ना वन टाइप ऑफ भावनात्मक उद्देश्य सी चिंता करिवो तार कौशलर प्रयोग करिवो सी मनरे भाबिवो ए सब है तार सर्जनात्मक शक्ति तो जेहेतु ये जाक तुम डीपली टिके चिंता कले जापर ये जाक भी क्या भितर आसी जाउछंती ना आमर भावात्मक लक्ष्य भितर आसी जाउछि तापर कहला शास्त्रानुरागी करवा अनुराग अनुराग मध्य आमे पूर्वर पढ़िथिले अनुराग कहा भितर जाउछि ना गोटे आमर भावना भितर जेहेतु अनुरागटा गोटे भावना भितर जाउछि सेथिपाई एटा मध्य कौन हम ना भावात्मक लक्ष्यर गोटे अंश हो शुण भावात्मक लक्ष्यटा देखिद तार कविताटा कौन थिला फास्ट देखि शुणी दियो आ थरे है ज्ञानात्मक पक्षर कविताटा मु तुमको पठेदेवी है रफ्रे लिखी तो प्रोवाइड करनी जदि हैंड नोट तुमको माने फेयर करके लिखिपार बेसी माने बाछ विचार करनी ताहले पठेदेवी है शुण ज्ञानात्मक पक्ष भावात्मक पक्षर देख कहले ज्ञानात्मक पक्ष ना टे नजर एठी भी थाउ ना कहले छंद अलंकार आदि रे गुरु लघुर विचारे करिब श्लोक गुड़ी को सस्वर गान पंचतंत्र हितो देश छात्र हृदय धारित चाणक्य विदुर नीति मूल्यबोधता अज्ञात धर्मशास्त्रादि संस्कार पुनः सृष्टि जानिबे आसिबे सबु ज्ञान पक्षरे को पक्षरे ज्ञान पक्षरे ए जाक आसीज सामान्य कथा तुम तीन थर गीतटा पढ़ीदे मन रही तापर भावात्मक पक्षरे गले ना कौन संस्कृत भाषा विकास सर्वांगीण विकास जोड़ा है संस्कृत भाषा विकास पाई मन को प्रेरित काव्य नाटक पठने रसानुभूति काव्य नाटक पठन द्वारा आम कौन ना रसानुभूतिर जागरण कवितर आसो भावात्मक पक्षर तापर गली रामंक भली जे होई रावण परित्यजई आदर्श मार्ग को कर मने जीवित रामादिवत प्रवर्तितव्यम न च रावणादिवत संस्कृत भाषानुराग संस्कृत भाषा प्रति अनुराग उत्स जागरण करिया संस्कृत भाषानुराग उन्नयन चारित्रिक नीतिवाणी पुस्तक को कर पठन नीतिवाणी पुस्तक को कौन पढ़ो ना चारित्रिक उन्नयन पाई तापरे महाभारत पठने देशभक्ति देश प्रेमे आउ सर्जन शक्तिर कर विकास महाभारत पठन रे कौन कर देश प्रेम देशभक्ति जागरण करिवो सेटा मध्य का भितर आसो भावात्मक पक्षरे सर्जनात्मक शक्तिर विकास मध्य आसो कौथे ना भावात्मक पक्षरे विकास करिबा पाई को विकास सर्जनात्मक शक्तिर विकास विकास करिबा पाई अभिव्यक्ति टिलोड़ई जो सर्जनात्मक शक्तिर विकास करिवो कौन ना तार अभिव्यक्ति हिसाब रे तार सर्जनात्मक शक्तिर विकास हुए
ନା କ'ଣ କହିଲେ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଟି ଲୋଡ଼ଇ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁରାଗୀ କରିବ ଭାବ ପକ୍ଷରେ କେଉଁ ପକ୍ଷରେ ଭାବାତ୍ମକ ପକ୍ଷରେ ହେଲା। ଆଉ କୌଶଳାତ୍ମକ ପକ୍ଷର ଖାଲି କବିତାଟା ଶୁଣିଦିଅ ସେଇଟା ଟିକେ ପଢ଼ିବା ନଚେତ୍ ନିଜେ ଟିକେ ଦେଖିଥିବ ବହି ହେଲା। କୌଶଳାତ୍ମକ ପକ୍ଷ ନା ପଢ଼ିଦେବା ଆଜି ଦେଖିଦିଅ ଟିକେ ହେଲା। ନା କହିଲେ ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱମନୋଭାବକୁ ଯଥୋଚିତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତା। କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ନା ଉଚ୍ଚାରଣ ଦକ୍ଷତା। ଏଇଟା ହେଲା କୌଶଳାତ୍ମକ ପକ୍ଷ। ଭାଷା ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ ତା'ର ବ୍ୟବହାରିକତା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସିଏ ନିଜ ଭାଷାଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ଦେନ୍ କାହା ଭିତରେ ଆସିବ ନା କୌଶଳାତ୍ମକ ପକ୍ଷ ବିଷୟରେ ବ୍ୟବହାରିକ ପଦ ସଂଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବୋଧ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ତା'ର ବ୍ୟବହାରିକ ପଦ ସଂଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବ। ତାପରେ ସ୍ୱରଚିତ ବିଷୟକୁ ଲେଖିବା ସହ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ତାକୁ ପାଠ କରିବା ଓ ତା'ର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ସ୍ୱରଚିତ ବିଷୟର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା। ଏଠି ଭାବିଦେବନି ମୁଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ମାନେ କ'ଣ ମନକୁ ମନ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ରଚିତ ବିଷୟ ନିଜ ରଚନା ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନିଜର ଗୋଟେ ଲେଖନ, ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆସିବେ କେଉଁଥିରେ ନା କୌଶଳାତ୍ମକ ପକ୍ଷରେ। ତାପରେ ହେଲା ନା ବୋଧ ଜ୍ଞାନର ପରିପ୍ରକାଶ ବୋଧ ଜ୍ଞାନର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଭାଷାରେ ସବିଶେଷ ଲେଖିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବୋଧ ଜ୍ଞାନର ପରିପ୍ରକାଶ କାହା ଭିତରେ ଆସିବ କୌଶଳାତ୍ମକ ପକ୍ଷ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଆମେ ଆଉ କେଉଁ ପରିପ୍ରକାଶ ଦେଖିଥିଲେ ରେ କ'ଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିପ୍ରକାଶ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ ରସାନୁଭୂତିର ପରିପ୍ରକାଶ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ରସାନୁଭୂତିର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା କାହା ଭିତରେ ଭାବାତ୍ମକ ପକ୍ଷରେ। ବୋଧ ଜ୍ଞାନର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା କୌଶଳାତ୍ମକ ପକ୍ଷରେ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ରଖ। ତାପରେ ନା କ'ଣ ପଠିତ ବିଷୟର ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଭାଷାରେ ସବିଶେଷ ଲେଖିବା ଯେହେତୁ ରହିଲା ଲେଖନଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କୌଶଳରେ ଆସିଲା। ପଠିତ ବିଷୟର ବାକ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହେବା କଥା ହେଲା, ପାଠ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ। ପଠିତ ବିଷୟର ପାଠ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆହରଣ କରିବା ସହ ତା'ର କୌଶଳାତ୍ମକ ବିଧି ନିର୍ମାଣ କରିବା। କୌଶଳାତ୍ମକ ବିଧି ନିର୍ମାଣ ଆସିଯିବ କ'ଣ ନା କୌଶଳ ପକ୍ଷରେ। ପଠିତ ବିଷୟର ପାଠ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆହରଣ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା'ର କ୍ୟାପାସିଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଜାଣିବ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ମାନେ ଗୋଟେ କୌଶଳକୁ ସିଏ ଜାଣୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା, ହଁ କି ନାହିଁ। ତା'ର ସାମର୍ଥ୍ୟଟା ତା'ର ଗୋଟେ କୌଶଳ। ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଗୋଟେ କୌଶଳ, ତ କୌଶଳାତ୍ମକ ପକ୍ଷରେ ଆସିବ। ତାପରେ କହିଲା ନା କ'ଣ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିବା ପଠିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପୂର୍ବକ ସଭା ସମିତିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ସଭା ସମିତିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେଉଁଥିରେ ଆସିବ ନା ତା'ର କୌଶଳାତ୍ମକ ପକ୍ଷରେ। ପଠିତ ବିଷୟର ବିଚାର ବିମର୍ଶ କାହା ଭିତରେ ଆସିବ ନା କୌଶଳାତ୍ମକ ପକ୍ଷରେ। ଶୁଣ, ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମନେ ରଖ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପାଠ ଯାକୁ ପଢ଼ୁଛ ନା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେପାରେଟ୍ କରି ପଢ଼। ବୋଧ ଜ୍ଞାନର ପରିପ୍ରକାଶ, ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଭାଷାରେ ସବିଶେଷ ଲେଖିବା, ଏଇ ଯାକ କ'ଣ କର ନା ସେପାରେଟ୍ କରି ଲେଖ, ସେପାରେଟ୍ କରି ପଢ଼, ତ ମନେ ରହିବ। ନଚେତ୍ ତୁମେ ଏଇ ବାକ୍ୟଟାକୁ ଦେଖିଲ ତ ଓ ଲେଖିବା ଅଛି ତ ଏଇଟା ରହିଗଲା କ'ଣ କୌଶଳାତ୍ମକ ପକ୍ଷରେ। ଦେଖିଲା ବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁଛି ନା କ'ଣ ବୋଧ ଜ୍ଞାନର ପରିପ୍ରକାଶ, ଏଇଟା ତ ଲେଖିବା କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା କେମିତି ହେବ କୌଶଳ ମାନେ କେଉଁ ପକ୍ଷ ଯିବ, ସେଠି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ। ତ
तो बुझीगला गोटे जिनस जोटा कि 99% पिला भूल करती कि वाक्य देखिले तो लास्ट को लिखा अच्छी लिखा अच्छी तो हाँ यहाँ तो आसो कौशलात्मक सेमिति केबे भी भूल करिवो ना बुझेला तापर नेक्स्ट हाँ कविताटा अधा लिखाई तापर शुण कौशलात्मक पक्षर कविताटा लास्ट को शुणी दियो कविता शुणला पर निद लगे शांति शोई पड़ हाँ शुण कौशलात्मक पक्ष ना कहले उच्चारण कौशल रे स्वभाव प्रकाशन रे भाषा श्रवण मात्र के व्यवहारता लेखन कौशले जान स्वरचित आगमन लेखन कौशल रे को लेखन कौशल ना निज विषय लेखन कौशल लेखन कौशले जान स्वरचित आगमन करिबा तात्पर्य को हृदयंगम जो स्वरचित विषय रहा तार तात्पर्य को आम कौन करवा हृदयंगम करवा बोध ज्ञानर प्रकाशे वर्णनात्मक विशेषे लेखिबा यथास्थान रे त्रुटि शून्य रे त्रुटि शून्य प्रयोग जोटा आम देखी विषय सामर्थ्य आण कौशल विधि निर्माण विषय सामर्थ्य आने गोटे कौशल विधि निर्माण कौन कौशलात्मक पक्षर गोटे अंश सभा समिति रे कर अंश ग्रहण सभा समिति रे अंश ग्रहण करिवे विचार और विमर्श रे भाग ग्रहण से करे से जो सभा समिति रे भाग ग्रहण करिवो केमिति करिवो ना विचार और विमर्श पूर्वक केमिति ना हृदयंगम करथिया विषय को कौन ना विचार और विमर्श पूर्वक से सभा समिति रे भाग ग्रहण करिवो तो कहले विचार और विमर्श रे भाग ग्रहण से करे संलग्न होइब जेबे कौशल पक्षे जेतेबेले से कौशलात्मक पक्षरे संलग्न होइब एई जिनस गुड़ाक तार प्राप्त होब भल लागिला हाँ निद लागिला तो हाँ ठीक अच्छे आज जी पढ़ले क्या कौन डाउट अरे कौन डाउट कि डाउट नहीं कौन टिके कह चुप हो रहीगले कौन हम गोटे डाउट थिला कह माने जो भावात्मक लक्ष्य जो चारित्रिक उद्देश्य और कौशलात्मक लक्ष्य जो स्वचरित्र ता भितर डिफरेंट कौन माने स्वचरित्रटा भी तो हेई परिबो भावात्मक लक्ष्य ना बुझी पारलिनी कौन कहलो भावात्मक लक्ष्य जो चारित्रिक उन्नयन उद्देश्य जो पाठ्य विषय बिना सेटा और कौशलात्मक लक्ष्य जो स्वचरित्र विषय रे बनना तो सेटा स्वचरित्रता तो भावात्मक एटा 3 नंबर 2 नंबर को सेटा स्वचरित्र नुह स्वरचित जोटा सेटा कहउतले सेटा तो भावात्मक भी हेई परिबो ना भावात्मक कहीं हम निज रचना माने कौन निजर गोटे रचना निज रचना हाँ तमें जो कौच माने सर्जनात्मक शक्ति हिसाब रे देखिले भावात्मक रे आसी पारिबो मु भी मानुची एक्सेप्टेड किंतु जेतेबेले स्वरचित विषय को लेखिबा माने स्व सर्जनात्मक शक्तिर विकास माने कौन निज माइंड रे निज कथोपकथन रे सर्जनात्मक शक्ति आनी पारछ किंतु जेतेबेले लेखिबाटा को सी प्रायोरिटी कले सेतेबेले कौन बा तन्न तन्न करी ताको पाठ करिबाटा कौन तार तात्पर्य को हृदयंगम करवा एटा को देखिबो जेतेबेले लागिबो भावात्मक किंतु जो पाठ करिबा लेखिबा ए जगह कौन वन टाइप ऑफ कौशल है ना तो सी एमती दबनी सी जो देख एटा को 3 भाग कर दियो गोटे देला कि स्वरचित विषय को लेखिबा कौन देला स्वरचित विषय को लेखिबा
ଲେଖିବା ଆସିଲା ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ କୌଶଳାତ୍ମକ। ସ୍ୱରଚିତ ବିଷୟର ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପାଠ କରିବା, ତାକୁ ବୋଲି ଆଉ ଦେବ କି? ସିଏ ଦେବ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ସ୍ୱରଚିତ ବିଷୟକୁ ପାଠ କରିବା। ପାଠ କରିବା ଇଟ୍ ମିନ୍ସ କୌଶଳାତ୍ମକ ପକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନ ରଖ, ସ୍ୱରଚିତ ବିଷୟର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। କାହିଁକି ନା ହୃଦୟଙ୍ଗମ ୱାର୍ଡ଼ ଆସିଲା ମାନେ ତମେ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ତୋ ହୃଦୟ କିଛି କହିଲା ଟାଇପ୍ର ଭାବିଦେବ, ଭାବାତ୍ମକ ପକ୍ଷରେ ଭାବିବ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ, ତାର ବାସ୍ତବିକତା କ'ଣ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ କୌଶଳାତ୍ମକ ପକ୍ଷକୁ ଟିକେ ମନରେ ରଖିବ। ଆଉ ନହେଲେ ନାହିଁ ଯେମିତି କହିଲି ସାଙ୍ଗକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିଦେବ, ଆଉ ମନେ ରହିଯିବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ ଡାଉଟ୍? ଏଇ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ। ରସାନୁଭୂତିର ପରିପ୍ରକାଶ, ବୋଧ ଜ୍ଞାନର ପରିପ୍ରକାଶ, ଆଉ ଗୋଟେ ପରିପ୍ରକାଶ ଥିବ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ପକ୍ଷରେ। କ'ଣ ଥିବ ଦେଖ? ଶାବ୍ଦିକ ଜ୍ଞାନର ପରିପ୍ରକାଶ। ତିନିଟା ଜିନିଷ ପୁରା ମାନେ କ'ଣ ଆର୍ଷ ପ୍ରୟୋଗାତ ଟାଇପ୍ର ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଧ୍ୟେୟ ବାକ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା। କୁହ। ଯୋଉ କବି ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ସେଇଟା ହଉଛି ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କବି ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପରିଚୟଟା ସେଇଟା କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯିବ? ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯିବ ନା ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯିବ? କବି କୋଉ ମାନେ କୋଉଥିରେ କହୁଛ? ଯୋଉ ଗଦ୍ୟ ପଠନର ଏଇ ପଦ୍ୟ ପଠନର ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର କହୁଛ ତ? ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣରେ କବିମାନଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ପରିଚୟ ଜ୍ଞାନ କୋଉଥିରେ ଦେଇଛି? ହଁ, ସେଇଟା ଦେଇଛି ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଦେଇଛି ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ହଁ, ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନଟା ଦେଲା, କିନ୍ତୁ କବିମାନଙ୍କ ରଚନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନଟା କୋଉଥିରେ ଦେଇଛି? ସେଇଠି ବି ଲେଖା ହେଇଛି କି କାଳିଦାସଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କବିଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ। ନାଇଁ ଦେଖ, ନାଇଁ ସେମିତି ନୁହଁ। ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛି କି କାଳିଦାସାଦି ଯେଉଁ ଦେଲା, କାଳିଦାସ ଆଦି ମାନେ କ'ଣ? କାଳିଦାସ ଆଦି ଏସାନ୍ତେ ମାନେ ସେମାନେ ବି ସ୍ୱୀକାର ହେଇଯିବେ ଯେଉଁମାନେ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଆଦି ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କାଳିଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ କାଳିଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦି ଯିଏ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସ୍ୱୀକାର ହେଇଗଲେ। ମାନେ ଓଭରାଲି ସବୁ କବିମାନେ ସ୍ୱୀକାର ହେଇଗଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କବିମାନେ ସ୍ୱୀକାର ହେଇଯିବେ ସେଇଟା କ'ଣ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଆସିବ। ବୁଝିଗଲା? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା। କାହାକୁ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି? କାଳିଦାସଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଏଟା ବିଶିଷ୍ଟରେ ଅଛି, ସାମାନ୍ୟରେ ନାହିଁ ତ। ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଛି। ଆରେ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ମୁଁ ବିଶେଷତମ ସମ୍ୟକ ବୋଧମ ଜନୟିତୁମ। ଆଉ ଏଠି କବିଙ୍କ କଥା କିଛି ନାହିଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ତାହେଲେ ସିଏ ମାନେ କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ସିଏ କାହା ଉପରେ ଇଏ ଦିଆଯାଇଛି ନା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ବିଶେଷତା କେବଳ ଗୋଟେ ଅଂଶକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଉପରେ। ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ତ ଏଠି କିନ୍ତୁ ସବୁ କବି ଯାକର ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ଼। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କବିମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ନେଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କବିମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ନେବାନି। ଆମେ କାହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ହିସାବରେ ଦେଖୁଛେ ନା ପଦ୍ୟକୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଆବସେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ହେଲା। ତ ମାନେ କ'ଣ ସାମାନ୍ୟରେ ଆମେ ପଦ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଓଭରାଲି ଦେଖିବା ସେଇଟା ଆସିଯିବ ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ କାଳିଦାସ ପଦ୍ୟର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? କବିମାନେ। କିଏ? ପଦ୍ୟର ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଅଂଶ ହେଉଛନ୍ତି କବିମାନେ। ଆରେ ପଦ୍ୟଟା ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ୟଟା ହେଲା ଓଭରାଲ୍, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ୟର ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ପାର୍ଟ ନା କବିମାନେ। କିନ୍ତୁ କବିମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କହିବା ମାନେ ମୁଁ କେବଳ କେଉଁ ଭାବନାରେ କହିଲି ମାନେ କବିମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ଓଭରାଲି କବିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କହିଦେଲି, ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ ହେଲା, ମୋ ମିଷ୍ଟେକ୍। କିନ୍ତୁ କବିମାନେ କହିଲେ ମାନେ ପଦ୍ୟର ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଲା କବି। ବୁଝିହେଲା? ଯେହେତୁ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ପାର୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଗଲା, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିବ। ଠିକ୍ ବୁଝିହେଲା? ଭାଇନା ତାହେଲେ କବି ପରିଚୟ ବି ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିବ? ହଁ, କବି ପରିଚୟ ବି ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିବ? ଆରେ କବି ପରିଚୟ ମାନେ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଯେଉଁଟା ଦେଲା, ତମେ ଯେଉଁ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହିସାବରେ ଦେଖନି, ଇଏ ଯାହା କହିଲି ପରା, ଯେଉଁ ଯାକ ଦେଇଛି ବହିରେ ତାକୁ ଆର୍ଷ ପ୍ରୟୋଗ ହିସାବରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଦେଖିଲେ ତ ଶୁଣ,
आम फास्ट सेमती देखिले माने कौन कहल बहुत जिनस एमती अच्छी जहाँ आम बुझिकी कले मिस्टेक ही हम बुझिल कि नहीं जमती कि माने ये जो सामान्य उद्देश्य ये जो व्याकरण शिक्षण विशिष्ट उद्देश्य सामान्य उद्देश्य देखुले से तो कृदंत तथित देला से जाक तो विशिष्ट भाव में पलि आसा कथा सामान्य आसुच्छी कौन पाई ना से जाक देख जोटा देइछि से जाक आम प्रायोरिटी देकी पढ़ा है बुझिल कि नहीं आ किछि जिनस एमती आसीबो तर्कसंगत आसीबो से जाक रहिबो आ कवि परिचयटा माने कवि मानक जीवन शैली विषयक माने विशिष्ट उद्देश्य रे आसला माने गोटे सेपारेट कवि परिचय आसला माने भी विशिष्ट उद्देश्य रे ही आस बुझिला किंतु लेसन प्लान दृष्टि रे लास्ट को जो लेसन प्लान जो देइछि सेथिरे एई जिनसटा को ही मॉडिफाई कर देइछि तमे देखिबो सिटी बुक रो लास्ट आड़ को जो देइछि सामान्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य देइछि सेठी सामान्य उद्देश्य रे लिखिछि कवि परिचय देखिबो सेटा मु प्राय मानुछि तमे सेई जिनसटा पढिछो नहीं सुनो तमे सेई जिनसटा पढिछो सेति पय पचारछ मु भी टोटल बहिटा देखिछि मु मानुछि किंतु कथा होछि या कि जोटी जो जिनसटा प्रायोरिटी देकी दियाछि सेटा हमें देखिबा हला तमे जदि डायरेक्ट देला कवि परिचय को उद्देश्य रे जाउछि सेटा लेसन प्लान आधार रे सामान्य उद्देश्य भितर से लिखाई सामान्य उद्देश्य स्लैश देकी कवि परिचय एमती तीनटा भाग लिखाई हाँ कि नहीं अच्छी सेमती तीनटा भाग से जाओ देखी अरे बही मु भी टोटाल देखी एमती नुह कि देखनी किंतु जो जिनसटा जोटी प्रायोरिटी दि जाए से प्रायोरिटी देकी पढ़ा है ठीक अच्छे वेरी गुड भल क्वेश्चन अन्य मान देखी कि नहीं रे से जिनस अच्छी है लास्ट जो लेसन प्लान रो पोस्ट स्टेप रे कॉपी परिचय रहइबो सेही ऊपर सेठी देइछि विशेष ऊपर देइछि सामान्य उद्देश्य रे ये देइछि हां किंतु एठी तो हमर टोटल पद्य रही कहूछि ना विशिष्ट उद्देश्य कि सामान्य नहीं नहीं एटा भी हम पढुते कोन भाई सही लेसन प्लान पे ही पढुते किंतु कथा होछि है कि जोटी जहा देइछि एडी देला कवि मानको जीवन शैली आसिला माने मारे माने एडा कोन ए जो पद्य शिक्षण विशिष्ट उद्देश्य रे किंतु जदि देइछि खाली कवि मानको परिचय से बही रे जहा प्रयोग करछि से वाक्य आसला माने से अकॉर्डिंग आंसर दो बुझेला नाउ कोन डाउट आगे मैंने बुझ गेली हां ठीक है वेरी गुड आउ काउ कोन डाउट भाईना आपण जो नोट पठेइतिले हैंड रिटन नोट आ सेतिरे भावगत ही लिखाइ छै एटा ठीक अछि भाईना भूल लिखाइ नै हां 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 हो ताल ठीक अछि जदि ठीक अछि ताले किछ असुविधा नै हां आउ हैंड रिटन नोट जाको माने मो व्हाट्सएप ग्रुप रे ही देबी दया करी से जाको शेयर करबानी तम मानको बारंबार टिके रो गोटे मिनिट